Welcome to all EpiWin webinar guests मुझे today. लगता Good है कि हम afternoon, बीते good हुए morning, 3 good मिनट से evening, शुरुआत करेंगे। and a तो particularly एपिपेन के सभी वेबिनार में a आपका strong स्वागत है। welcome, if you आज like, के for those मेहमान of गुड you joining आफ्टरनून, away गुड from मॉर्निंग, गुड far इवनिंग away, or from और खास those तौर of से you for अगर whom आपको it's really पसंद है late तो or very आपका early. स्वागत है। We really आप में से उन appreciate your लोगों के लिए presence जो here. दूर-दूर से शामिल हो रहे हैं या Today, we have a आप में very से उन exciting लोगों की ओर webinar से on जिन्होंने vaccines for इसके seasonal लिए and बहुत देर avian हो चुकी है influenza, या बहुत जल्दी hosted by WHO EpiWin. आज यहाँ आपकी उपस्थिति हमें बहुत अच्छी For लगी। those of you who are हमारे new पास to सीजन के EpiWin, टीकों पर एक this is बहुत a ही रोमांचक WHO वेबिनार है information network for और एवियन avionics for इन्फ्लुएंजा science की and मेजबानी knowledge डब्ल्यूएचओ translation ने and किया health था एपी, लेकिन emergencies. आप में से जो With ईपीआई these में नए हैं, EpiWin webinars, जब यह and we डब्ल्यूएचओ also है have an associated EpiWin digest of slide sets which summarize वेबिनार the इन key ईपीआई के messages from साथ these विज्ञान और webinars. ज्ञान के Our अनुवाद goal और is to स्वास्थ्य translate संबंधी आपात science into स्थितियों के लिए accessible, महामारी के लिए understandable, and सूचना नेटवर्क relevant और ways हमारे पास for स्लाइड सेट का एक संबद्ध evidence-informed ईपीआई actions विन and डाइजेस्ट भी है। decisions, वेबिनार both for the जो इनमें public से मुख्य and for संदेशों को decision संक्षेप में makers बताता है। looking at emergency हमारा लक्ष्य preparedness and विज्ञान का सुलभ में response. अनुवाद करना है, We have a सबूत से जुड़ी really जानकारी देने वाली कार्रवाइयों के exciting लिए समझने योग्य और list of प्रासंगिक तरीके speakers today. और फैसले जनता के लिए Dr. और Wen स्वास्थ्य के मामले में Qingyang, निर्णय लेने Principal वालों दोनों के लिए Introduction in the आपातकालीन Influenza तैयारियां और World. प्रतिक्रिया। आज He's the हमारे head पास of the वक्ताओं Global की एक बहुत Influenza ही रोमांचक Program. सूची है। We'll be welcoming you डॉक्टर वेन shortly, शिंजियांग, किसे followed इन्फ्लुएंजा by की दुनिया में Dr. किसी Nicola परिचय की Luis, who जरूरत will नहीं talk है। about seasonal वह influenza ग्लोबल vaccines. इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम की She's the प्रमुख है। director of हम the जल्द ही Worldwide आपका स्वागत Influenza करेंगे। Center, उसके बाद which डॉक्टर is a निकोला WHO लुइस आए। collaborating सीजन center for इन्फ्लुएंजा the के टीकों के बारे में reference कौन and बात करेगा? research on influenza वे and वर्ल्ड वाइड transmission इन्फ्लुएंजा सेंटर की Institute. निदेशक हैं। डब्ल्यूएचओ कौन And सा है? Dr. Richard Webby will speak after इन्फ्लुएंजा पर that. संदर्भ और शोध He's के the लिए director सहयोग of the केंद्र WHO और फ्रांसिस Collaborating क्रिक Center for इंस्टीट्यूट और डॉ Studies on Ecology of उसके Influenza in बाद रिचर्ड Animals वेब्बी and बोलेंगे। Birds from St. वे Jude's डब्ल्यूएचओ के निर्देशक हैं। Hospital. We also have something for you. We'd love to know uh, सेंट जूड्स हॉस्पिटल से what you जानवरों और feel, पक्षियों and में we have a इन्फ्लुएंजा की short quiz पारिस्थितिकी for पर you as अध्ययन के well, लिए which is सहयोग केंद्र। coming up हमारे soon. पास It's a आपके लिए भी कुछ surprise. है। But हमें यह before जानकर that, अच्छा before I लगेगा कि hand आपको over क्या to लगता है और Wenjing, हमारे पास आपके some लिए एक छोटी housekeeping. प्रश्नोत्तरी भी है This webinar, जो as you जल्द ही know, आने for वाला था। those of यह you हैरानी who की are बात है, regular, is being live streamed लेकिन on इससे पहले EpiWin कि YouTube मैं कुछ channel. हाउसकीपिंग के लिए It's वेंजिंग को also सौंप दूं, being यह recorded, वेबिनार जैसा and कि आपको पता है, afterwards the recording will be available from our website. आप And में the से जो address नियमित for हैं that उन्हें will एपीपेन appear के in the यूट्यूब चैनल chat. पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। Interpretation is available इसे today, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है along with our और उसके बाद wonderful रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी। interpreters from Transperfect and हमारी Arabic, वेबसाइट French, से और उस Portuguese, पते से and बातचीत के Spanish. बारे में जानकारी मिलेगी। Please go to the interpretation ट्रांसपोर्ट के globe हमारे icon and बेहतरीन switch to दुभाषियों की access ओर and से select the आज उपलब्ध language. है We also और have अरबी, फ्रेंच, AI पुर्तगाली और enabled स्पेनिश interpretation, since भाषा हमारे our पास goal भी is है। to और reach कृपया as many इंटरप्रिटेशन people as ग्लोब possible. आइकन पर जाएं The और AI जूम करके उन्हें interpretation is in एक्सेस करें Chinese, और चुनें। Mandarin, हमारे बाद Hindi, से मैंने Russian, and व्याख्या चालू की Bengali. है। हमारा The लक्ष्य ज्यादा से largest, ज्यादा लोगों तक most पहुंचना है। widely एआई spoken की व्याख्या languages. चीनी, We मैंड्रिन, हिंदी में invite है, you to post your रूसी और name, बंगाली location, and organization in सबसे the बड़ी, chat सबसे box, and अधिक we would बोली love जाने to वाली hear where you're भाषाएं। coming हम from. आपको अपना नाम पोस्ट And करने के लिए finally, आमंत्रित if करते you हैं। have any questions, चैट please बॉक्स में put it in स्थान the और Q&A संगठन और box हमें and not अच्छा the लगेगा chat यह box, सुनने के because लिए कि sometimes आप your कहां questions से आ get रहे lost हैं। in the chat. और अंत में It's अगर not आपके कोई easier प्रश्न है, for us to keep track of them in the Q&A box. We कृपया will इसे have a प्रश्नोत्तर बॉक्स में Q&A रखें, न session कि at the चैट end. बॉक्स में, क्योंकि Also, कभी-कभी for those आपके of you प्रश्न whose बातचीत में questions खो are जाते हैं। not answered, we will try उन पर and नजर रखना हमारे have लिए a बहुत आसान है। summary प्रश्नोत्तर बॉक्स में response सत्र later के on. आखिर में हमारा प्रश्नोत्तर सत्र Now, होगा। इसके लिए भी without आप में any से जिनके further ado, सवालों के जवाब over नहीं मिले to हैं, Wenqing Zhang. हम कोशिश करेंगे Wenqing, और the संक्षिप्त floor is जानकारी yours. देंगे, बाद में प्रतिक्रिया दें। अब पहले Thank you very बिना much, किसी देरी के Silveria. I hope you can hear me well. वेन Good. चांगजियांग के बारे में बात करना फिर खत्म करना आपका है। आपका Hello, बहुत बहुत everybody. धन्यवाद सुप्रिया। Welcome to this मुझे उम्मीद है webinar आप मेरी on बात अच्छी influenza. तरह सुन And पाएंगे। अच्छा है, today, नमस्ते we are हर going कोई। to focus on vaccines. इन्फ्लुएंजा पर Vaccines इस for वेबिनार में seasonal आपका स्वागत influenza है and vaccines for avian influenza. और आज हम वैक्सीन पर Winter ध्यान is देने जा upcoming रहे हैं। in the northern hemisphere, so is मौसमी flu season. इन्फ्लुएंजा के लिए टीके और Every year, इन्फ्लुएंजा an के टीके। estimated उत्तरी गोलार्ध 1 में सर्दियां billion आने people वाली हैं, are ऐसा ही infected फ्लू with का मौसम है। influenza, and of those, हर 3 साल to 5 million people had अनुमानित 1 बिलियन लोग इन्फ्लुएंजा से infection or संक्रमित हैं severe diseases. And और every उनमें से year, 3 से we have 5 up मिलियन to लोगों के पास था गंभीर 650,000 संक्रमण या गंभीर बीमारियां, influenza-related respiratory deaths globally. और हर To साल prevent हमारे पास होता infection है।
and especially severe outcomes caused by influenza. वैश्विक स्तर पर इन्फ्लुएंजा से होने वाली 650,000 से संबंधित सांस से होने वाली मौतें, संक्रमण और खासकर इसकी वजह से होने वाले गंभीर परिणामों को रोकने के लिए इन्फ्लुएंजा टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है।
इन्फ्लुएंजा रोग इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो कि स्वाभाविक रूप से लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए टीकों से प्रेरित रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचने के कारण वैक्सीन के टीके शामिल हैं, या वैक्सीन में मौजूद वायरस उन्हें साल में 2 बार फ्यूचर होल्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। WHO के विशेषज्ञों से परामर्श। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पांस सिस्टम समस्याएं। आने वाले टीकों के लिए फ्लू टीकों की संरचना की सिफारिशें। इन्फ्लुएंजा का मौसम तो असल में मेरी पिछली बार पिछले हफ्ते हुई थी, और WHO ने पिछले शुक्रवार को यह सुझाव जारी किया था। 29 सितंबर। इन्फ्लुएंजा दुनिया भर की जनता के एक हिस्से में से एक है। स्वास्थ्य के लिए खतरा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह हजारों लोगों को मार डालता है हर साल, लेकिन यह महामारी का कारण भी बनता है। हम सभी 1918 की महामारी को अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता था। तबाही है, जिसमें लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे। कुछ अनुमान तो 100 मिलियन तक भी जाते हैं। 2009 में हमें गंभीर मौसमी के समान हल्के प्रारूप में महामारी का सामना करना पड़ा था, इन्फ्लुएंजा, जिसमें तक की मौत हो गई। अनुमान के मुताबिक 575,000 लोग, जबकि 2020 में हमें महामारी की वजह से हुई थी SARS-CoV-2 वायरस। लेकिन हम यह जानकारी और समझ के आधार पर जानते हैं अगली इन्फ्लुएंजा महामारी यकीनन पक्की। तो आजकल के आधुनिक डिजिटल युग में हम सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5 है और स्तनधारियों में एक स्पिलओवर। यह फ्लू महामारी की चेतावनी के पुख्ता संकेतों का एहसास है। दुनिया को याद दिलाना कि इन्फ्लुएंजा महामारी का खतरा असल में है। पिछले सप्ताह WHO में इन्फ्लुएंजा के टीके से संरचना के लिए परामर्श। एक अन्य उद्देश्य हासिल किया गया है, वह है महामारी विज्ञान की गहन समीक्षा स्थिति। तो एवियन इन्फ्लुएंजा और अन्य जानवरों का वायरस वर्गीकरण, कैंडिडेट वैक्सीन के विकास के लिए इन्फ्लुएंजा और उसके बाद वायरस का चयन, महामारी के लिए तैयार होने वाले प्रस्ताव के लिए वायरस। बताया गया यह सारा काम साल भर के काम पर आधारित है। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस नामक एक वैश्विक प्रणाली द्वारा निगरानी और रिस्पांस डिस्ट्रेस सिस्टम। पिछले साल यह 70वीं वर्षगांठ में मनाया गया था और अब हम इन्फ्लुएंजा संकट के बाद इस प्रणाली को इसके 100 वर्षों तक आगे बढ़ाने का इस्तेमाल अन्य श्वसन विषाणुओं की ओर ले जाया गया है। RSV के लिए तब से 2015 और मार्च 2020 से SARS-CoV-2 भी। तो श्वसन की एक रेंज को एकीकृत करने का काम। वायरस जिसमें महामारी और महामारी की संभावना बढ़ रही है, दुनिया को और सुरक्षित और ज्यादा के लिए तैयार करने के लिए संकट जारी है। सुरक्षित भविष्य। तो आज इस वेबिनार में, जैसा कि सुपरयर ने पेश किया था, हमारे 2 विशेषज्ञ हैं जो सलाहकार समिति में हैं। पिछले सप्ताह WTO से परामर्श में डॉ. निकोला लुइस और डॉ. इससे पहले कि हम एजेंडा के तौर पर आगे बढ़े, रिचर्ड वेब्बी। मुझे मेरे सहकर्मियों ने सलाह दी थी कि हमारे पास प्रश्नोत्तर पाने के लिए यहाँ का सत्र दिलचस्प है दर्शकों और इंटरैक्टिव सेशन की ओर से। और बेशक यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मध्यम स्तर का कोरिया है। आपके पास एक दिलचस्प सेशन की तैयारी है। आप हाँ, धन्यवाद विंचिंग, धन्यवाद विंचिंग। हम बस कुछ ही मिनटों में काम शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको एक दिखेगा। कुछ सवाल कृपया चुनें। आइए देखें कि आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंजा के बारे में। हमारे 2 सवाल हैं। कृपया उन प्रश्नों का चयन करें जो आपको सही लगे। पहला यह है कि इन्फ्लुएंजा किसी वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंगस, केमिकल या अन्य। आपके पास वहाँ कई विकल्प हैं, आप जो भी चुन सकते हैं। और फिर हाँ, कोई सवाल नहीं है। Oh, great. Can you see the results?
Excellent. इन्फ्लुएंजा का Oh, इलाज so we have एंटीबायोटिक a दवाओं group here से that किया जा really knows सकता है। about ओह ओह, influenza. बहुत बढ़िया। Fantastic. क्या आप परिणाम देख Thank सकते you हैं? very बहुत much. बढ़िया। So 99% of you have correctly chosen इसलिए हमारा यहाँ influenza एक is समूह है caused by जो a असल में virus इन्फ्लुएंजा के बारे and में can it जानता be है। treated by an बहुत बढ़िया, antibiotic? आपका बहुत No. बहुत धन्यवाद। तो That's आप में से false. That's 99% ने सही किया 96% है। of you said that. चुना हुआ Thank you इन्फ्लुएंजा so वायरस much. की वजह से होता है। Now और क्या over एंटीबायोटिक to से इसका इलाज किया जा सकता है? नहीं, Louis. यह गलत है। आप में से 96% ने ऐसा कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब निकोला लुइस के बारे में। Thank you, Supriya. And firstly, good morning, good afternoon, good evening from wherever you are dialing into this धन्यवाद webinar. सुप्रिया। It's a great pleasure to और be here सबसे today. पहले गुड मॉर्निंग, गुड I'm going आफ्टरनून। to talk इस वेबिनार में first आप जहां से about भी the डायल कर रहे हैं viruses that वहां will be से गुड included इवनिंग। in influenza vaccines for the आज next यहाँ season, आकर बहुत खुशी and हुई। also a little about how this is decided, the pieces of information we use मैं when पहले we're उन thinking विषाणुओं के about बारे the में बात करने जा recommendations रहा that हूं we जिन्हें make. अगले सीजन में इन्फ्लुएंजा के टीकों में I'm शामिल किया actually जाएगा। going to और इस बारे thank में भी कुछ people पता है first, कि यह कैसे तय किया because जाता है। as we're सुझावों के बारे में changing सोचते समय हम किस the जानकारी का इस्तेमाल करते information हैं that we जो use हम to बनाते make the हैं। vaccine decision comes मैं from असल the में पहले Gisris लोगों को network. धन्यवाद दूंगा Now, क्योंकि Gisris जैसा कि वेन celebrated चिंग ने its बताया 70th anniversary वह last जानकारी year, जिसका इस्तेमाल हम but the वैक्सीन के base बारे for में फैसला Gisris करने के लिए is करते हैं really the डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क tireless से आता है। efforts of the और WHO जिलों ने national पिछले साल influenza अपनी centers 70वीं around the world वर्षगांठ मनाई। who लेकिन collaborate सबसे together बड़ा as जोखिम part of the असल में किए network, गए अथक who प्रयास है। WHO की contribute and दुनिया भर के share the नेशनल clinical इन्फ्लुएंजा specimens केंद्र and कौन virus नेटवर्क isolates के हिस्से with के the रूप में WHO साथ मिलकर collaborating सहयोग करें। centers. And without their constant क्लिनिकल efforts, नमूने we और would वायरस not कौन be योगदान able देता to है consider और उन्हें making शेयर करता है। recommendation for the vaccine. आइसोलेट्स So this WHO is के a साथ thanks to all सहयोगी colleagues केंद्र और in उनके member लगातार states प्रयासों के around the बिना world that contribute to हम the Gisris वैक्सीन के लिए network. सुझाव देने And I'm पर विचार presenting the नहीं कर data पाएंगे। on behalf of them. I also तो should मैं thank दुनिया my भर के colleagues in सदस्य देशों के HQ, उन सभी सहयोगियों colleagues in को the धन्यवाद देता WHO हूं regional जिन्होंने योगदान offices, दिया डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क के लिए और ECDC, मैं the उनकी ओर से University of डेटा पेश Cambridge, कर रहा हूं। and also मुझे modelling मुख्यालय में groups अपने in सहयोगियों Germany, को भी the धन्यवाद United देना States, चाहिए। and WHO Switzerland. क्षेत्रीय कार्यालयों में सहकर्मी ECDC I'm going कैम्ब्रिज to विश्वविद्यालय start by और जर्मनी में explaining समूहों की a मॉडलिंग भी little करते हैं। bit about how संयुक्त we राज्य अमेरिका और consider the स्विट्जरलैंड data for the vaccine recommendation. मैं We इसके बारे use में कुछ समझाकर epidemiological शुरुआत करने data, जा रहा हूं। genetic data, हम and वैक्सीन के सुझाव antigenic के लिए data. डेटा पर कैसे विचार करते हैं? And as I said, हम महामारी these विज्ञान से pieces of संबंधित डेटा का information इस्तेमाल करते are हैं, जेनेटिक generated डेटा और all एंटीजेनिक year डेटा। और round जैसा through कि the मैंने कहा surveillance conducted by Gisris. इन Part of जानकारियों the के टुकड़े network जनरेट are the किए जाते हैं। WHO collaborating centers, the national influenza centers, नेटवर्क के इस हिस्से द्वारा की जाने वाली निगरानी के माध्यम से साल भर क्या WHO सहयोग केंद्र है, नेशनल इन्फ्लुएंजा केंद्र, आवश्यक विनियामक प्रयोगशालाएं और साथ ही जैसा कि रिचर्ड WHO के बारे में बात करेंगे H5 संदर्भ प्रयोगशालाएं। हमने हाल ही में साउदर्न हेमिस्फेयर वैक्सीन संरचना के लिए परामर्श पूरा किया है। सुझाव और यह कुछ ऐसा था जिसे हमने पिछले सप्ताह शुरू किया था। इसकी सह अध्यक्षता डॉक्टर ने की थी डेविड वेंटवर्थ और मैं, और आप नीचे के कोने में एक तस्वीर देख सकते हैं। हम परामर्श के दौरान काम पर हैं। हाल के वर्ष मैं आपको इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दिखाने जा रहा हूं जो हमें इन्फ्लुएंजा के बारे में है। यह प्रोसेस किए गए नमूनों की संख्या है 2020 से 2023 तक सप्ताह के हिसाब से जिलों के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि यह पीली रेखा 2022 सीजन की है और यह लाल रेखा के रूप में 2023 तक इन्फ्लुएंजा सर्कुलेशन के रूप में जारी है। नमूनों की संख्या जिलों के हिसाब से प्रोसेस की जाती है। 2022 और 2023 में काफी मिलते जुलते हैं। पूरी तरह से पता है कि वहाँ क्या हुआ था। Actually not, Nicola. It's dark. एक पल at मुझे least on उम्मीद my है screen कि आप here. अभी भी मेरी स्क्रीन Okay. देख सकते हैं। माफी चाहता हूँ, तो असल में निकोला नहीं है, अंधेरा है, कम से कम यहाँ मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, अब यह वापस आ गया है। ओह, बहुत बढ़िया, अच्छा है। इस एक चीज के लिए धन्यवाद। और अब आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, थम्स अप करने के लिए धन्यवाद।
तो यह देशों का भौगोलिक वितरण है। वे क्षेत्र और क्षेत्र जहां सहयोगी केंद्रों के साथ वायरस साझा किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह असल में एक वैश्विक प्रयास है। हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रचलन बाईं ओर दिखाया गया है और फरवरी से अगस्त के अंत तक दक्षिणी गोलार्ध में। यह उत्तरी गोलार्ध मौसम का अंत था। इन्फ्लुएंजा बी वायरस की चपेट में आने की संभावना है और फिर दक्षिणी गोलार्ध का मौसम शुरू हो गया और उनमें इन्फ्लुएंजा का अनुपात था H1N1 वायरस और ई लिनेज वायरस। जब हम फरवरी से लेकर आखिर तक की इन्फ्लुएंजा गतिविधि को देखते हैं, अगस्त का, आप उस अनुपात को देख सकते हैं। H3H1 और बी विक्टोरिया वंश के वायरस देश के हिसाब से अलग अलग है या दुनिया का वह क्षेत्र जहां आप खोज रहे हैं। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध को देखें, अफ्रीका, हमने इसे शायद के कुछ हिस्सों में देखा। हमने ज्यादातर वायरस H3 वायरस के रूप में देखे, जबकि मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में हमने H1 वायरस और बी विक्टोरिया वायरस का एक बड़ा हिस्सा देखा। मैं आपको H1N1 PDM09 से कुछ जानकारी दिखाने जा रहा हूँ। हाल का विकास। हमारे पास विषाणुओं का एक विस्तृत आनुवंशिक समूह है जो कि PDMH1 वायरस है। फिलहाल हमने उन्हें जेनेटिक समूहों में रखा है और दरअसल ज्यादातर आनुवंशिक समूह जो हाल ही में प्रसारित हुए हैं, इसमें 5A से लेकर 1 क्लैड तक और 5-8 से 1 क्लैड तक के वायरस होते हैं और इन्हें इन मानचित्रों पर नीचे के 2 गुलाबी रंगों के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें आप बाईं ओर देख सकते हैं। फाइलोजेनी में पेज के बाईं ओर आप इन्हें 5A2 और फिर से देख सकते हैं। 5A2 वायरस चिन्हित, और अगर आप बीच के पैनल में टिक के निशान देखें 2023 के लिए, वे बताते हैं कि भौगोलिक रूप से ये अलग अलग जेनेटिक कहाँ है। विषाणुओं के समूह फैल रहे थे। उदाहरण के लिए, हमने कई 5A2 वायरस को फैलते हुए देखा दक्षिण अमेरिका में। आप इसे लाइटर से देख सकते हैं, नीला रंग। जबकि हमने हाल ही में 5A2 और वायरस फैलते हुए देखे उत्तरी अमेरिका में और असल में यूरोप में। हम इन विषाणुओं को एंटीजेनिक या चिन्हित भी करते हैं और उनकी तुलना भी करते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन स्ट्रेन द्वारा मान्यता प्राप्त गुण। इस स्लाइड के दाईं ओर आपको एंटीजेनिक नक्शा दिखाई दे रहा है। हम हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन परख का इस्तेमाल करके एंटीजेनिक नक्शे बनाते हैं, डेटा, और हम इससे संबंधित वायरस को चिन्हित करते हैं। फेरेट एंटीसेरा रेस की प्रतिरक्षा प्रणाली की पहचान वायरस के विशिष्ट प्रकारों के लिए। फिर हम एंटीजेनिक बनाने के लिए एंटीजेनिक कार्टोग्राफी नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। नक्शे जो हमें दिखाते हैं कि अलग अलग वायरस वैक्सीन स्ट्रेन के समान कैसे होते हैं, और आप इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए ऐसे वायरस देख सकते हैं जो प्रसारित होते रहे हैं। 5A से A और 5A से लेकर 1 तक के समूहों को गुलाबी और बैंगनी रंग के रूप में दिखाया गया है। इस नक्शे में बिंदु हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि बड़ी मंडलियां सिडनी 521 सेल N1 के प्रतिनिधि हैं। वैक्सीन के सुझाव के घटक और आप बैंगनी रंग में भी देख सकते हैं। ए विक्टोरिया 48972022 और 1 विस्कॉन्सिन। 6720 वैक्सीन के 22 घटक जो उत्तरी गोलार्ध के लिए सुझाए गए थे। जब हमने इसका इस्तेमाल किया तब भी हम ह्यूमन सेरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। H1N1 वायरस के एंटीजेनिक गुणों को दर्शाने के लिए एंटीसेरा फेरेट करें। हमने देखा कि वे सभी काफी मिलते जुलते थे और उन्हें अच्छी पहचान थी। वर्तमान में फैल रहे स्ट्रेन के लिए वैक्सीन सीरम। हालांकि जब हमने ह्यूमन सेरोलॉजिकल पैनल का इस्तेमाल किया था इन मौजूदा वायरस को देखने के लिए, और ये वे लोग हैं जिन्हें टीका लगाया गया है। ए सिडनी 5 2021 सेल घटक, हमने पाया कि उनके एंटीसेरा ने पहचान नहीं पाई। 5A2 वायरस भी
potential loss of recognition by the vaccine strain तो for H1 currently वायरस के लिए circulating हमने strains. बहुत कुछ देखा। Now I'm going to talk a bit about the H3N2 वैक्सीन के जरिए virus पहचान में for this आने वाले particular season. संभावित नुकसान से पहचान, वर्तमान में Like the फैलने वाले H1 स्ट्रेन के viruses, कारण we see स्ट्रेन, many genetic groups और of मैं इसके H3 लिए viruses H3N2 circulating वायरस के बारे में globally. थोड़ी बात करने And जा we रहा हूँ। also see that the सीजन जैसे proportion H1 of वायरस, different genetic हम देखते हैं groups कि H3 circulating वायरस के कई depends आनुवंशिक समूह on घूम where रहे they're हैं वैश्विक circulating. स्तर पर, The और major हम genetic यह भी groups in this देखते हैं reporting कि period अलग अलग जेनेटिक का were the अनुपात 2A3A1, सर्कुलेट होने वाले shown in समूह this इस blue बात पर colour, निर्भर करते हैं the कि वे कहाँ घूम 2Bs, रहे हैं। shown in the इस yellow रिपोर्टिंग colour, अवधि के प्रमुख आनुवंशिक and the समूह जहां 2 2A1Bs, 3 shown in the दिखाए गए green हैं इस colour. नीले रंग में। And you can see different proportions दोनों of बी these को पीले viruses रंग में दिखाया circulating गया है in Europe and then in और other दो geographic एक बी को regions. हरे रंग में दिखाया गया So है। we consider all these pieces of और information आप and we यूरोप में compare इन the विषाणुओं sequences के of the अलग अलग viruses अनुपात to the में फैलते vaccine हुए strains, देख सकते as हैं, is shown in this और फिर दूसरे phylogenetic tree. भौगोलिक क्षेत्रों में। And this time इसलिए we'll हम इन compare सभी the जानकारियों पर sequences विचार with करते the हैं A और Darwin सीक्वेंस की 6 तुलना करते हैं 2021 विषाणुओं से लेकर vaccine वैक्सीन के components. स्ट्रेन तक के बारे में, जैसा कि इस फाइलोजेनेटिक ट्री में And we दिखाया saw गया है। during this whole और इस year बार हम a सीक्वेंस की change in तुलना ए proportion डार्विन of से these कर रहे थे। viruses. Whereas from February through to the present, we 6 saw the 2021 proportion of वैक्सीन घटक और हमने 2A3A1 इस पूरे viruses वर्ष के दौरान increase एक बदलाव markedly, देखा इन as can विषाणुओं be के seen अनुपात में, on the right-hand side जबकि of the फरवरी से slide. वर्तमान तक Again, we हमने also देखा कि use 3A1 hemoglobin A वायरस के inhibition अनुपात में assay उल्लेखनीय data to वृद्धि हुई compare the है, antigenic जैसा कि इस properties of स्लाइड के these दाईं ओर viruses. देखा जा सकता And है। you फिर can से see here that we saw हम good हेमाग्लोबुटिनिन recognition of the एग्लूटिनेशन इनहिबिशन 2A3A1 परख डेटा viruses का भी इस्तेमाल for करते हैं the इन by the विषाणुओं के antiserum एंटीजेनिक rate गुणों की तुलना against करने this के लिए, और particular आप यहाँ genetic देख group. सकते हैं कि हमें Whereas for इसके the लिए 2B अच्छी पहचान मिली है। viruses, we saw some loss of recognition. इस And खास के indeed, that खिलाफ was एंटी true for the सेरा के खिलाफ 2A1B फैलाए गए viruses एंटी as well. सेरा के लिए 2-3-1 We also वायरस use जेनेटिक antigenic ग्रुप, जबकि cartography 2B to look at वायरस the के लिए antigenic हमने पहचान properties में of the कुछ कमी H3 देखी, और असल में viruses. यह दोनों And here you 1B can see वायरस that के लिए these भी green सही था। strains from the 2A3A1 हम group एंटीजेनिक are very कार्टोग्राफी का antigenically इस्तेमाल similar to each एंटीजेनिक गुणों other, को देखने के but लिए a भी little करते bit हैं different from some of the H3 वायरस, vaccines और that यहाँ have आप been देख सकते used हैं कि ये in हरे रंग के previous स्ट्रेन seasons. एक समूह एक दूसरे के समान We एंटीजेनिक होते also हैं, look at the लेकिन इस्तेमाल की गई कुछ टीकों से properties, the थोड़ी अलग। structural पिछले सीजन में properties of the virus. And these are some protein structures of the हम hemagglutinin संपत्तियों को protein, भी which we देखते हैं, know is the primary target वायरस of के the immune संरचनात्मक response. गुण, And you can see that और there ये are amino हेमाग्लूटिनिन acid प्रोटीन की कुछ substitution प्रोटीन संरचनाएं हैं changes between the A Darwin जो हमें 6 पता है कि 2022 इम्यून vaccine रिस्पॉन्स strain का and प्राथमिक a लक्ष्य है। representative from the recent और आप देख सकते हैं 2A3A1 कि डार्विन के बीच genetic अमीनो group. एसिड के विकल्प में बदलाव हुए Then हैं। we also use human 6 serology. 2022 And वैक्सीन here we स्ट्रेन found और that हाल there ही was में मिले एक प्रतिनिधि 3A1 heterogeneous or वैक्सीन जेनेटिक ग्रुप different के लिए, recognition by the immune और हम system of ह्यूमन the सेरोलॉजी का भी currently इस्तेमाल circulating करते हैं, strain, और which यहाँ perhaps हम indicates that there's antigenic पाया कि drift इम्यून of के these हिसाब से viruses कुछ विषम या and a अलग पहचान potential थी। to need to वर्तमान update में the सर्कुलेटिंग recommendation. स्ट्रेन के लिए सिस्टम, We also have influenza B viruses जो शायद circulating, इंगित and these करता है indeed have कि इन continued to विषाणुओं का circulate from एंटीजेनिक February बहाव through to है, September. और यह कि संभावित But first, I'd सुझाव like to अपडेट take करना you होगा। back in time. हमारे पास This इन्फ्लुएंजा is the बी global वायरस भी फैल circulation of रहे हैं, influenza और B ये असल में viruses जारी since है। late फरवरी से 2018. सितंबर तक प्रसारित किया And जाएगा, लेकिन what we पहले see मैं आपको with समय पर the वापस ले जाना चाहता हूँ। green curve यह is इन्फ्लुएंजा बी viruses वायरस that का have ग्लोबल circulated from सर्कुलेशन the तब से है, B Victorian lineage. 2018 के आखिर में, And then we see और हम from ग्रीन the के साथ क्या blue देखते हैं? line the viruses circulating from the B Yamagata lineage. कर्व वे वायरस है And then जो we बी also विक्टोरिया see from वंश the से निकले हैं, orange line viruses और where फिर the हम B नीली रेखा से lineage has वायरस not को been बी से फैलते determined. हुए देखते हैं, So the highlight of यामागाटा this वंश, और slide फिर is हमें that नारंगी we used रेखा to भी see दिखाई देती है, co-circulation. वायरस We used जहां to भी see वंश का both निर्धारण नहीं lineages किया गया है। circulating. तो But इस since स्लाइड का मुख्य 2020, आकर्षण यह है कि represented by this blue line here, हम along को-सर्कुलेशन basically the देखते थे या हम x-axis, दोनों वंश we को have had फैलते no हुए देखते थे, detections of लेकिन B viruses 2020 के from the बाद से, Yamagata जैसा कि lineage. मूल रूप से एक्स अक्ष के साथ इस नीली So what रेखा I'm going द्वारा to share दर्शाया with गया you है, now हमें भी are वायरस the का कोई पता information नहीं from B चला है lineages, but we will यामागाटा be वंश से। focusing on the B Victorian lineage because that's the lineage that we have detected recently. तो अब मैं आपके साथ बी लिनेज की Again, जानकारी we use साझा करने जा sequences रहा to हूँ, compare the लेकिन हम भी properties, the विक्टोरिया genetic वंश पर properties ध्यान of the देंगे क्योंकि viruses यही relative वह to the वंश है vaccine जिसका strain. हमने पता लगा You can लिया see है। that we हाल ही में फिर continue से to हम गुणों की तुलना करने के लिए
लिए सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन स्ट्रेन से संबंधित वायरस के आनुवंशिक गुण। आप देख सकते हैं कि हम अभी भी जेनेटिक देख रहे हैं, वी विक्टोरिया वंश के भीतर विविधता। लेकिन जब आप ज्याग्राफिक स्प्रेड को देखते हैं
ये असल में वैश्विक स्तर पर फैल रहे हैं और प्रसारित हो रहे हैं। सितंबर से जनवरी तक और असल में हाल ही में फिर से सभी बी विक्टोरिया वंश से। जब हम बी विक्टोरिया वायरस के एंटीजेनिक गुणों को देखते हैं, वैक्सीन के सुझाव के घटक, हम यह तब देख सकते हैं जब हम उनकी तुलना मौजूदा से करते हैं। बी ऑस्ट्रिया सेल के घटक और बी ऑस्ट्रिया अंडा जैसे घटक हम बहुत देखते हैं। वर्तमान में फैल रहे स्ट्रेन के लिए बहुत अच्छी पहचान वैक्सीन के इन खास स्ट्रेन के कारण। तो हम असल में देख सकते हैं कि इस समय पहचान अच्छी है। अगर लोगों को इन स्ट्रेन का टीका लगाया जाना था, यह संभावना है कि वैक्सीन प्रभावी होगी। फिर से हम एंटीजेनिक कार्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह है। नक्शे पर एंटी सीरम सर्कल इंटरपोलेट आईडी और आप वह देख सकते हैं। यह हमें इस बात का संकेत देता है कि सभी तनाव होने पर प्रतिरक्षा कहाँ खो सकती है। इस बड़े एंटी सीरम सर्कल के अंदर आने वाले हलकों में तब हमें लगता है कि वैक्सीन वर्तमान में फैल रही चीजों से अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगी। स्ट्रेन्स और असल में हमने अच्छी सुरक्षा के प्रमाण देखे हैं। मेलबोर्न, चाहे हमने लंदन के सहयोग केंद्र के डेटा पर विचार किया हो या असल में सहयोग केंद्र के डेटा पर विचार किया हो, फिर से हम टीकाकरण के बाद के सीरम का इस्तेमाल उन मनुष्यों से प्राप्त सीरम का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें टीका लगाया गया है। बी ऑस्ट्रिया घटक और आप इस हीट मैप से देख सकते हैं कि नीला होने पर यह इसका मतलब है कि ये पैनल, यह ह्यूमन सेरोलॉजी वर्तमान में घूम रहे स्ट्रेन्स को अच्छी तरह से पहचान रहा है। और फिर दाईं ओर आपको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, पुराना और अलग तरह का आनुवंशिक समूह, और आप वहां देख सकते हैं कि ये वायरस है। बी विक्टोरिया के खिलाफ किए गए एंटी सीरम से इतनी अच्छी तरह से पहचाना नहीं गया। सेल का घटक, मैंने बी यामागाटा लिनेज वायरस का जिक्र किया और जैसा कि मैंने कहा, हमें इसके बाद भी यामागाटा लिनेज वायरस फैलने का कोई पुष्ट पता नहीं चला है। 2020 असल में संकट असल में इकट्ठा हो गया। 15,000 से अधिक सिर्फ 1 फरवरी से 30 अगस्त के बीच में ही लगभग 16,000 नमूने लिए गए थे। अब भी यामागाटा लिनेज वायरस की पुष्टि हो गई है, उन 15 में से कुछ जिन्हें शुरू में पहचाना गया था। जैसा कि बी यामागाटा 13 के बी विक्टोरिया होने की पुष्टि हुई थी या असल में इन्फ्लुएंजा के कारण नकारात्मक थी बी वायरस और 2 पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो आखिरकार मैं 2024 सदर्न हेमिस्फेयर इन्फ्लुएंजा सीजन के लिए सुझाव देने आया हूँ। तो यह सुझाव उस डेटा के आधार पर दिया गया है जिसका हमने पिछले सप्ताह विश्लेषण किया था और दरअसल हमने H1N1 घटक को अपडेट करने की सिफारिश की थी। सुझाव उत्तरी गोलार्ध के लिए सिफारिश और अपडेट के अनुरूप है। थाईलैंड H22 के H3 और 2 घटक जैसे वायरस या मैसाचुसेट्स 1822 जैसे वायरस। मैं यहाँ यह भी ध्यान देता हूँ कि हमने विशेषज्ञों की एक समिति के तौर पर यह सुझाव दिया है कि हमारी राय है कि बी यामागाटा लिनेज एंटीजन को शामिल करना है। अब इसकी वारंटी नहीं है और हमें इस घटक को बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मैं यहाँ उम्मीदवार के वैक्सीन के वायरस और प्रकाशनों के कुछ लिंक दे रहा हूँ। क्या आपको इन पर और विस्तार से नजर डालनी चाहिए? और असल में जूनोटिक इन्फ्लुएंजा सारांश रिपोर्ट भी है जिसके बारे में रिचर्ड जल्द ही और बात करेंगे। आपका ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे कोई भी सवाल पूछने में खुशी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद निकोला। तो कृपया करके अगर इस समय आपके कोई प्रश्न है, आप प्रश्नोत्तर पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं और हम इस सेशन के आखिर में प्रश्नोत्तर पर वापस आएंगे। डॉक्टर रिचर्ड वेबी की ओर से प्रस्तुतिकरण के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा पर कौन मौजूद है? एनिमल इन्फ्लुएंजा के मोर्चे पर। तो फिर से अभी हमारा यहाँ अभ्यास चल रहा है। बाय बाय, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद विंची। तो आप सभी ने पिछले प्रश्नों में शानदार प्रदर्शन किया था, जाहिर है। हमारे दर्शकों की संख्या अलग अलग होने के कारण यहाँ एक हार्डकोर इन्फ्लुएंजा ग्रुप है व्यापक रूप से। तो यह जानकर अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जिन्हें इन्फ्लुएंजा की अच्छी जानकारी है उन्हें पहले से ही यहाँ। तो इस बार सवाल शायद थोड़े हैं मुश्किल, बस थोड़ा सा।
or आप वहां false? जाते हैं। And 2 the सवाल। second is, candidate vaccine viruses एनिमल versus human इन्फ्लुएंजा सिर्फ influenza are जानवरों selected को to save संक्रमित करता time है, in the इंसानों case को नहीं। where a vaccine may need to be सही है या developed. गलत? True or false? और दूसरा है कैंडिडेट वैक्सीन वायरस। For zoonotic influenza vaccines, जिस स्थिति में वैक्सीन save विकसित time करने in the की case where a आवश्यकता हो vaccine may सकती need है, to be उस स्थिति में developed. समय बचाने के लिए जूनोटिक इन्फ्लुएंजा का चयन किया जाता There's है। one word that's जूनोटिक missing. इन्फ्लुएंजा के लिए सही या गलत? टीके। अगर वैक्सीन विकसित करने की जरूरत हो तो समय की बचत करें। यह एक शब्द है जो वहां मौजूद नहीं है। तो Please vote. ये पैर We'll just put the results out in just a second. चलिए बस नतीजों को बस यही बताते हैं। Right. Slightly एक greater सेकंड। variation this time. Animal influenza infects only animals and not humans. सही है। Well, 94% of इस you बार said it's थोड़ा not बड़ा true. बदलाव। और अगर And इन्फ्लुएंजा that's the सिर्फ right उन answer. जानवरों को And संक्रमित करता candidate है vaccine जो इंसान viruses for नहीं है। zoonotic influenza ठीक है। vaccines are selected to save आप time में से in the case where a 94% vaccine ने may कहा need to कि be यह सच developed. नहीं है और यह True, सही जवाब है। और 78%. जूनोटिक इन्फ्लुएंजा के Great. टीकों के लिए उम्मीदवार And वैक्सीन false, वायरस उस स्थिति में 22%. समय बचाने के You लिए are चुने right, जाते of हैं course. जहां वैक्सीन All of विकसित करने की आवश्यकता who've हो सकती है। chosen सच है। the majority of 78% the बहुत answers. बढ़िया। और Great. 22% आप सही So कह now रहे you हैं। learn a बिल्कुल। little bit more about candidate आप सभी जिन्होंने vaccine बहुसंख्यक को चुना है viruses for zoonotic जवाबों में से influenza बहुत बढ़िया। vaccines. Over to you, Wenqing, and to तो Dr. अब Richard आपको Webby. कैंडिडेट वैक्सीन के बारे में Yeah, कुछ at the और moment, जानकारी मिल let's गई है। move जूनोटिक directly इन्फ्लुएंजा के to टीके के लिए Dr. वायरस Richard आपके Webby's बारे में वेंजिंग और presentation डॉ on रिचर्ड zoonotic वेबी। हाँ, avian influenza. Richard? फिलहाल चलिए सीधे यहाँ Thank you चलते all, हैं। and डॉ जूनोटिक इन्फ्लुएंजा morning, पर good रिचर्ड afternoon, good वेबर की evening. प्रस्तुति। कौन सा रिचर्ड? आप Okay, सभी को hopefully धन्यवाद you और can see अच्छी that. So what I'm going to सुबह। very briefly discuss is, as you've गुड just heard, आफ्टरनून और the गुड इवनिंग। तो deliberations उम्मीद that है we कि had आपको वह last दिखाई week. देगा। तो मैं जिस But बारे में specifically संक्षेप में looking चर्चा at करने जा रहा these हूँ वह है viruses that जैसा are कि आपने circulating अभी in सुना our है। animal population, पिछले सप्ताह हमने particularly जो with the विचार विमर्श birds किया था, and swine of the world. लेकिन As you just खास heard तौर for से इन from the विषाणुओं को quiz, देख रहे the हैं reason जो that we जानवरों do की this दूसरी is आबादी में that फैल रहे हैं। these viruses तो are खासकर going to be दुनिया the के पक्षी source और of the सुअर next और influenza जैसा कि pandemic. आपने अभी अभी फ्रॉम And द should क्विज के one बारे of में these सुना start था, to spread in humans, हमारे ऐसा करने we का would like कारण to यह है respond कि with making a vaccine. वायरस अगली And इन्फ्लुएंजा that महामारी का process स्रोत बनने of जा making रहे a हैं। vaccine, as we know, और can क्या take इनमें से 5 एक to को 6 इंसानों में months. फैलना The शुरू हो जाना first चाहिए। हम 5 to वैक्सीन 6 बनाने के लिए weeks of प्रतिक्रिया that देना चाहेंगे are और spent वैक्सीन बनाने making की these वह प्रक्रिया candidate जैसा कि vaccine हम जानते हैं viruses that can be इसमें 5 से delivered 6 महीने लग to सकते हैं। the vaccine manufacturers. And so the idea इसके पहले behind what 5 we से do 6 here सप्ताह इन is, उम्मीदवारों को at these वैक्सीन वायरस meetings, बनाने में we बीते look हुए at हैं। what's going उन्हें on in the वैक्सीन निर्माताओं animals तक पहुंचाया and जा सकता है if और we इसलिए हम see यहाँ जो viruses करते that are हैं उसके particular पीछे का विचार concern, इन मीटिंग्स में we will है। go ahead and make these candidate हम देखते हैं viruses कि जानवरों just के in क्षेत्र में case क्या चल study. रहा है। अगर हमें ऐसे वायरस And दिखाई therefore, देते हैं if one जो of them खास does चिंता का start to विषय है, take off and circulate amongst humans, हम इस we're उम्मीदवार 6 की weeks जरूरत ahead पड़ने of the पर उन्हें game वायरस बना to देंगे। और immediately इसलिए send some of these candidate अगर vaccine उनमें से viruses एक to इंसानों के बीच manufacturers. उड़ान भरकर फैलना शुरू कर देता है। And so that's sort of summarized in here, the viruses हम that खेल से you 6 just सप्ताह heard पहले हैं और हम Dr. इनमें Lewis से talk कुछ about कैंडिडेट वैक्सीन were वायरस viruses निर्माताओं that को तुरंत circulate भेज सकते हैं। primarily with, well, और almost इसलिए यहाँ exclusively संक्षेप within में बताया humans, गया है कि वायरस maintained हमने by अभी सुना। human-to-human डॉ transmission. लुइस इस बारे में The बात viruses करते I'm हैं going to talk about जहां are वायरस related to मुख्य other रूप से species. So लगभग they are विशेष रूप within से the भीतर फैलते animal हैं ताकि non-human मानव से animal मानव में संचरण population. बना रहे। They circulate मैं जिन वायरस के here बारे में बात करने जा and रहा हूँ every वे now इस and दूसरे again क्षेत्र में हैं, some of them will jump इसलिए वे over इन जानवरों because के of भीतर zoonotic उचित रूप से हैं। transmission to जानवरों one की maybe अमानवीय to आबादी human. जो वे यहाँ Most फैलाते of हैं those और stop कभी कभार there. When we have a उनमें से pandemic, कुछ of course, जूनोटिक those ट्रांसमिशन viruses की then वजह start से to उछल spread पड़ेंगे। into एक humans. को So the viruses that I'm going to mostly शायद talk about इंसानों को are viruses that were महामारी detected होने in पर the उनमें से past ज्यादातर वहीं रुक जाते हैं। बेशक 5 or इसके 6 बाद वे वायरस months इंसान में that फैलना have शुरू made कर this देते हैं। sort of तो वे one वायरस leap जिनके बारे में from मैं these animal ज्यादातर बात करने वाला हूँ, populations into 1 or 2 ऐसे वायरस humans. जिनका पिछले And 5 that's या where 6 we महीनों में spend पता most चला of है, that जिन्होंने time
during these deliberations, looking at जानवरों की viruses इन that- आबादी से 1 या 2 इंसानों में इस The तरह की एक information छलांग that we use, I'm not going to go through this in और any इन detail, विचार विमर्श के Nicola दौरान just हम did, अपना ज्यादातर but समय these यही are बिताते हैं। information streams that ऐसे go वायरस को into देख it, रहे हैं making जिन्होंने ऐसा किया है। recommendations for the हमारे seasoning द्वारा इस्तेमाल की जाने of वाली vaccine जानकारी के बारे strains. में विस्तार We use से जानकारी essentially नहीं दी the जाएगी same क्योंकि निकोला ने अभी processes हाल ही में किया था, लेकिन ये सूचना strains स्ट्रीम है as जो well. सुझाव देने में With a little इस्तेमाल bit of होती है difference, सीजन वैक्सीन स्ट्रेन के लिए। clearly we're talking about viruses that circulate within animals, so we bring हम इन in स्ट्रेन के a लिए lot भी of मूल रूप से additional इसी प्रक्रिया collaborators का into इस्तेमाल these करते हैं। discussions, including the थोड़े से WHO अंतर के साथ H5 साफ साफ हम reference उन विषाणुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो including किसी जानवर के साथ laboratories फैलते from हैं, the animal इसलिए sector, हम बहुत से particularly अतिरिक्त off-food सहयोगी लेकर group, आते हैं which is an इन चर्चाओं के FAO बारे में, or जिसमें H5 संदर्भ expert, प्रयोगशालाएं भी शामिल है, group of, जिसमें जानवरों के individuals क्षेत्र की on प्रयोगशालाएं unfortunately शामिल cover हैं, these खासकर फ्लू deliberations ग्रुप। as well. FAO विशेषज्ञ कौन सा Typically, है? although there are also a little less data on some of these viruses than इन्फ्लुएंजा से seasonal पीड़ित व्यक्तियों का counterparts. समूह जो And the इन bottom विचार line विमर्श is के लिए भी the आते हैं, same आमतौर type पर। of process is used. We look हालांकि at इनमें what से कुछ viruses are वायरस out के बारे there, में what उनके their डेटा की genetic तुलना में makeup थोड़ा is, कम है, and what their मौसमी antigenic समकक्ष। makeup लेकिन is. लबोलुआब यह है कि And so I'm एक ही gonna तरह की run प्रक्रिया through का just इस्तेमाल as किया जाता है। हम Dr. देखते हैं Lewis कि did, वहाँ कौन कौन go से वायरस होते हैं, through what we actually उनका talked जेनेटिक about, मेकअप क्या है और last उनका week. एंटीजेनिक क्या है। So here is just a मेकअप है और a इसलिए मैं slide डॉ की तरह showing काम करूंगा। what लुईस ने वह are देखा जिसके बारे में genetic हमने cases. असल में These are बात की थी viruses that have gone from पिछला हफ्ता। animals into humans, तो यहाँ सिर्फ but एक haven't स्लाइड दी गई है gone जिसमें any किसका further नंबर than दिखाया that. गया है, So जूनोटिक each of मामले। तो these, फिर the से number of cases on the ये वे वायरस हैं this जो जानवरों से axis, इंसानों में climb चले across गए the हैं, bottom. Each of the different लेकिन colours इससे आगे नहीं represents गए। different virus that's circling in the animal populations. तो सूची There में is a मौजूद huge इनमें से प्रत्येक केस diversity में नीचे of दिए गए different समय को influenza एक्सेस करें। viruses हर अलग अलग रंग circulating in एक some of अलग these वायरस का animal प्रतिनिधित्व करता populations. है It's जो only a जानवरों की small आबादी में percentage of चक्कर लगा those रहा है। that अलग we अलग तरह actually की बहुत see बड़ी making विविधता this है। jump, इनमें into से कुछ humans, जानवरों and की they're आबादी में represented इन्फ्लुएंजा by वायरस फैल these रहा है। different bars here. यह उन चीजों का सिर्फ Sorry, कुछ ही let's प्रतिशत move है it up on जिन्हें my हम end. असल में बनाते हुए These are the देखते हैं। different subtypes of viruses that we इंसानों में detected, कूदों of और उनका animal-influenza प्रतिनिधित्व यहाँ viruses that इन we अलग अलग बार detected in द्वारा किया humans जाता है। in the माफ past करना, 6 यह months. मेरी ओर And से we'll कवर talk हो जाता about है। some of these now in a little bit ये more वायरस के detail, अलग अलग particularly in उपप्रकार the हैं context जिनके बारे में of हमने एनिमल dealing with इन्फ्लुएंजा the वायरस से up-to-date पता लगाया जिसे arsenal हमने पिछले 6 of महीनों में pandemic इंसानों में पाया है, vaccine और हम viruses. इनमें से कुछ के बारे में अभी थोड़ा और So विस्तार से बात the big करेंगे, one that we खासकर क्या हमें spend इसकी most जरूरत of है our के time संदर्भ में। discussing was the H5 virus. कैंडिडेट And वायरस for के the हमारे reasons that शस्त्रागार most को of अपडेट us करें are ताकि aware, these viruses have जिस बड़ी spread समस्या के बारे में on a हम near अपना global ज्यादातर समय scale over बिताते the हैं past वह था couple of years. H5 So वायरस, this और is a किन कारणों से map मुझे of लगता है flu. कि Each हम में of से these ज्यादातर dots लोग जानते हैं represents a ये detection वायरस नजदीक outbreak ए से in फैल गए हैं पिछले in कुछ animal सालों में वैश्विक स्तर populations, पर। तो यह primarily in ऑफ्लू का birds, नक्शा है, but इनमें on से हर बिंदु wild पता लगाने का as प्रतिनिधित्व well. करता है जानवरों की आबादी में प्रकोप। Sort of तो मुख्य numbered रूप से alphabet पक्षियों में soup over here अजीब जंगली describes स्तनपायी the भी genetic clades of viruses that were इस detected तरह in का this नंबर। period. The big one has been this 2344B, and this virus is belonging to this यहाँ पर particular अल्फाबेट genetic सूप में group, वायरस के आनुवंशिक समूहों के बारे में बताया गया है जिनका इस दौरान पता चल गया था। सबसे बड़ा यह 2, 3, 4 रहा है, चांद बी, और यह वायरस जिम्मेदार इसी विशेष आनुवंशिक समूह से संबंधित है। ज्यादातर बिंदु जो आपको इस मैप पर दिखाई देते हैं, तो असल में यह अमेरिका की सभी बातें हैं। ज्यादातर बिंदु यूरोप और अफ्रीका में, दक्षिणी के कुछ हिस्सों में थोड़ी ज्यादा विविधता है, और पूर्वी एशिया। लेकिन फिर ये दोनों 3, 4, 4 भी वायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से ज्यादातर समस्याएं दूर हो गई हैं पिछले कुछ साल। हम असल में फिर से देखते हैं कि मानव में क्या फैला है। इनमें से अधिकांश 2, 3, 4, 4B वायरस, इनमें से कुछ अलग अलग क्लैड और कंबोडिया हैं, और इस साल के ये सभी व्यक्ति चिली से एक को छोड़कर जहां अनजान लोग थे उनमें बहुत संक्रमित पोल्ट्री के बहुत करीब संपर्क में आना, तो मुर्गी पालन से लेकर मानव संक्रमण या पता लगाना, ये लोग यूके से आए। ये 4 मामले इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये वे व्यक्ति थे जो लोगों को निर्वासित करने में शामिल थे और उन्हें संक्रमित किया गया था, पोल्ट्री फ्लॉक। और फिर भी कुछ इस बारे में कि क्या वे असल में सही मायने में थे संक्रमित है, या सिर्फ इसलिए कि वे ऐसे वातावरण में थे जो बहुत ज्यादा दूषित था। ऐसा लग रहा था कि वे संक्रमित हो गए हैं, और इसलिए आप यहाँ उम्र सीमा देख सकते हैं, ज्यादातर वयस्कों में या उन लोगों की ओर बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग वयस्क। और यहाँ हमारे सामने आए संची मामलों की कुल संख्या है। 2000 की शुरुआत से ही वायरस के साथ H5 वंश से उम्मीदवार वैक्सीन वायरस की ओर से मिली खुशखबरी नजरिया। जब हमने जानवरों की आबादी में फैल रहे इन विषाणुओं को देखा, खासकर वे जो मानवीय मामलों से संबंधित हैं,
हमने पाया कि किस तरह के वैक्सीन वायरस हमारे पास पहले से हैं। प्रोड्यूस ने फिर भी बहुत प्रतिक्रिया दी। H5 वायरस के मौजूदा क्रॉप के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए हमने अपनी सीवी की सूची को अपडेट करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। H5 के लिए इस तथ्य के बावजूद कि अभी भी बहुत कुछ है, जानवरों में इन विषाणुओं का प्रसार बहुत व्यापक है। ज्यादातर पक्षी, इंसानों में बहुत छिटपुट स्पिलओवर। अब दूसरे स्तनधारी, अगर हम दूसरे वायरस को देखें, शायद यही वह वायरस है जिसे H5 एक तरफ छोड़ देता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है। दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा और पोल्ट्री की आबादी का उपप्रकार। इस अवधि के दौरान H9 और 2 वायरस, हमने H19 टोस की बहुत सारी गतिविधियां देखी। फिर से दुनिया के कई क्षेत्रों और चीन में मुर्गियों की आबादी में इन H9 और 2 वायरस से मानव मामले 5 रिपोर्ट किए गए थे। मुर्गी पालन में फिर से लोगों को बेनकाब किया गया, तो बहुत से लोगों के साथ संक्रमित पक्षियों से बहुत नजदीक संपर्क, और वे 9 साल की उम्र में यहाँ देख सकते हैं। और यह एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम आम तौर पर देखते हैं। यह उन युवा व्यक्तियों को होता है जो H9 से संक्रमित होते हैं, और इसलिए हाँ, बीमारी फिर से हमेशा हल्की थी। H9 आम तौर पर समग्र रूप से अधिक हल्की बीमारी का कारण बनता है H5 कैन की तुलना में, और इसलिए उनमें से कुछ ये हैं। असल डेटा जो हमने इन वायरस के साथ देखा, और फिर याद आया कि ये हमारे मौजूदा वैक्सीन वायरस है। ऊपर से हर जगह उम्मीदवार के वैक्सीन वायरस। यहाँ बड़ी संख्या में एंटीसीरम के समरूप टाइटर्स दिए गए हैं। जब आप यहाँ सूची में नीचे जाते हैं तो वे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपको यहाँ नीचे से छोटी संख्याएं मिलती हैं, इसका मतलब है कि ये वैक्सीन वायरस भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वर्तमान में फैल रहे वायरस के साथ। और मैंने यहाँ इस समूह की परिक्रमा की है क्योंकि यह H9 और 2 विषाणुओं का समूह है। पिछले कुछ सालों से मुख्य भूमि चीन में घूम रहे हैं, जिससे 2022 में मानव संक्रमण हो रहा है, और 2023 वायरस भी इसी समूह से संबंधित है और हेमाग्लुटिनिन के अंदर। इन विषाणुओं के अवरोध टाइटर्स समरूप टाइटर्स की तुलना में कम थे हमारे पास मौजूद वैक्सीन के हर स्ट्रेन के लिए। मेरा मतलब है, यह हमारे लिए संकेत है कि हमें आगे बढ़कर इस ग्रुप के लिए वायरस अपडेट करने होंगे, और हमने किया, और इसलिए हमने इस वायरस के लिए एक नए H19 का सुझाव दिया है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। चीन में H19 2 विषाणुओं की मौजूदा फसल, और यह डेटा बीजिंग के सहयोग केंद्र द्वारा साझा किया गया है। तो फिर से 2 में से एक नया H कैंडिडेट वैक्सीन वायरस। अगर हम अभी इस बारे में स्विच करें कि स्वाइन में क्या चल रहा है, तो आपके पास बहुत मनुष्यों के साथ बहुत सक्रिय जूनोटिक इंटरफेस और स्वाइन की आबादी यह ज्यादा सीमित है, तो इन्फ्लुएंजा के कई उपप्रकार फैल रहे हैं H1 और H3। यह उन विषाणुओं के समान है जिन्हें हम मनुष्यों में देखते हैं। कम से कम सबटाइप में वायरस अपने आप में थोड़े अलग होते हैं। पिछले 6 महीनों में कुल मिलाकर कई मामलों का पता चला है। देशों का एक जानलेवा संक्रमण था ब्राजील। इस व्यक्ति की कुछ अंतर्निहित स्थितियां थी, हालांकि इससे ज्यादातर समय बीमारी की गंभीरता बनी रहती थी। H9 और 2 ये संक्रमण हल्के होते हैं और फिर से होते हैं। कैंडिडेट वैक्सीन वायरस के मामले में उनमें से ज्यादातर का स्वाइन के संपर्क में आना। यहाँ इंसानों में पाए गए ज्यादातर वायरस मिलते जुलते थे। उम्मीदवार वैक्सीन वायरस, हमारे पास पहले से ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर हमें भरोसा नहीं था, वह था ये H3 और 2। इसलिए अमेरिका में ये मानव संक्रमण कृषि क्षेत्र में होते हैं, राज्य मेले जहां लोग साथ आते हैं, और यह अपने सबसे अच्छे जानवरों को दिखाने की प्रतियोगिता है। विजेता के लिए पुरस्कार होते हैं, और अक्सर ऐसे वातावरण में जहां बहुत सारे लोग आते हैं। इन कृषि में स्वाइन खलिहान के माध्यम से कभी कभी वायरस इंसानों में फैल जाते हैं, और यहाँ ऐसा ही हुआ। हालांकि हमारे पास उस खास इंसान पर वायरस नहीं था। केस कुछ विषाणुओं का पता चला था, और इन कृषि मेलों के इर्द गिर्द वह मानवीय मामला कहाँ हुआ। वे यहाँ कुछ अलग अलग आनुवंशिक वंशों से संबंधित हैं। तो यहाँ ये संख्याएं इन स्वाइन वायरस की वंशावली के बारे में बताती हैं, और यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। तो इन नंबरों को यहाँ देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये कितने छोटे हैं। संख्याएं उन नंबरों की तुलना में होती हैं। आप देख सकते हैं कि असल में यह मौजूदा H3N2 वायरस का समूह है। हमारे पास मौजूद किसी भी कैंडिडेट वैक्सीन वायरस से हमें खराब तरीके से पहचाना गया था, या वैक्सीन के विषाणुओं के लिए एंटीसीरम। इसलिए हमने फिर से CVD-PV जैसे नए H3N2 की सिफारिश की। स्वाइन में फैलने वाले विषाणुओं के इस समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें
पता है कि उनमें कम से कम जानवरों से इंसानों में संक्रमण करने की क्षमता है। तो मैं वही रुकूंगा। तो मेरे ख्याल से बस संक्षेप में बता दूं, वैक्सीन का कोई कैन नहीं है। वायरस का विकास वीसीएम की बैठकों का एक अभिन्न अंग है। कई सहयोगी पार्टनर, हम यहाँ से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों बस उस क्षेत्र के भीतर। H5 रेफरेंस में से लैब्स यहाँ के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जैसे कि हमारे फ्लू और दूसरे पार्टनर। कुछ अकादमिक और अन्य राष्ट्रीय पार्टनर जो इस बारे में जानकारी और वायरस भी देते हैं। जैसा कि चर्चा की गई है कि यह प्रक्रिया काफी हद तक निकोल द्वारा सीजन के लिए बताई गई प्रक्रिया से मिलती जुलती है। समस्या बेशक बस वायरस के एक अलग सेट पर ध्यान केंद्रित किया। जानवरों के क्षेत्र में हमारे पास यह है कि वायरस की इतनी बड़ी विविधता है जो फैल रही है इन जानवरों की आबादी में, और यहीं से हमारे सामने चुनौती होती है कि हम उनके खिलाफ तैयारी नहीं कर सकते सब। इसलिए हमें फोकस करना होगा। क्या इसके लिए जोखिम मूल्यांकन का ज्यादा तरीका अपनाया जा सकता है? हम कौन सी सीवी विकसित करेंगे? और जैसा कि मैंने कहा, वीसीएम से पहले हमें 2 सीवी सुझाए गए थे, तो सूची में जोड़ने के लिए कुछ और। उम्मीद है कि हमें इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हम वहां ऐसा करते हैं तो। और फिर मुझे लगता है कि मैंने लोगों को स्वीकार कर लिया है, तो मैं वही रुकूंगा और आपके पास वापस आते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रेजेंटेशन के लिए रिचर्ड। हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए लगभग 15 मिनट का समय है। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर शुरू करें, बस एक पैनलिस्ट से मिलवाने के लिए, तो पैनलिस्ट उन 2 वक्ताओं को भी शामिल किया गया है जो अभी बोले थे, और मेरे सहकर्मी डॉ. एस्पन हैमंड, जिनके पास असल में पहले से ही काफी कुछ था। कुछ सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं, और मैं भी। तो हम सभी मिलकर आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। हमें देखो, मेरे सामने प्रश्नों की एक लंबी सूची। प्रश्नों का एक समूह बीम कंपाउंड से संबंधित है, और इसलिए प्रश्नों में इस तरह शामिल है कि क्यों या कैसे हम बीम को हटाने के लिए इस तरह का निर्णय लेते हैं। लेकिन आने वाले दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बस स्पष्टीकरण देने के लिए 2024 सीजन तो क्वाड्रिवेलेंट टीके वैक्सीन संरचना की सिफारिश की गई है, और असल में इसमें शामिल करने की सलाह दी गई है। वहाँ एक किरण है, जबकि इस घटक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। टीके, इसलिए प्रश्नों से पता चलता है कि हम क्यों या कितने आश्वस्त हैं। क्या सुझाव दिया गया था और हम इस एक अतिरिक्त घटक के साथ जो करने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो यह क्या हो सकता है? इसका निहितार्थ आत्मविश्वास है। चार्ल्स को अन्य टीकों के लिए और असल में निगरानी कैसे की गई? हाँ, हो सकता है। निकोला पूरक बनने में सक्षम हो। हाँ, धन्यवाद। अगर आप इसका जवाब देना शुरू करना चाहते हैं और दूसरे करेंगे। वेनचेंग, मैंने असल में बातचीत में भी कुछ प्रतिक्रियाएं टाइप की थी, इसलिए मुझे लगता है कि वे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान हैं। हमारे पास जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि अगर हम इससे शुरुआत करें, चीजों का सबूत आधारित पहलू बी से जुड़े कुछ सवाल, वंश निर्धारित नहीं है, और मुझे लगता है कि आगे जो चीजें बहुत जरूरी होंगी उनमें से एक है निगरानी। रजिस्ट्रियों के अंदर मजबूत बना रहता है, और हम निगरानी में सभी योगदानकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं। सिस्टम सिर्फ यह निर्धारित करने के लिए ही नहीं कि वह एक प्रकार के रूप में हो, लेकिन वंश का निर्धारण करने के लिए भी, और फिर यह हमें फॉलो अप करने का अवसर देता है, चाहे कोई भी हो। बी यामागाटा वंश का पता लगाना, अंतर्निहित महामारी विज्ञान को समझने के लिए। बी उन पहचानों के पीछे है, क्योंकि मुझे यकीनन लगता है कि यह सच है कि हमने पता लगाने के कुछ नंबरों के साथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में रिपोर्ट किया गया है। असल में यह समझने के लिए कि नीचे क्या चल रहा है। इस सवाल पर आते हैं कि क्या हम इसमें शामिल कर सकते हैं एक वैकल्पिक घटक। यह भविष्य के लिए बहुत आकर्षक विकल्प है, और सतही तौर पर आप कर सकते हैं कि हर तरह से स्लॉट लगाना बहुत आसान होगा। कुछ H3 स्ट्रेन, हालांकि वह मूल विज्ञान जो घटकों को बदलने के निर्णय को आधार बनाएगा।
And so इन्फ्लुएंजा whilst it would be वैक्सीन a के very, अंदर ताकि हम समझ सके कि क्या advantageous संयोजन option for है। the future, सबसे we अच्छा need संयोजन much यह more हो सकता है research to कि सबूत underpin अभी our तक मौजूद नहीं है understanding और तब of तक यह adding बहुत different components. भविष्य के लिए Here फायदेमंद in the विकल्प। future with, अपनी समझ perhaps को new मजबूत बनाने के vaccine लिए हमें और अधिक formulations, शोध की जरूरत है। perhaps new vaccine platforms indeed, के साथ we भविष्य would में अलग अलग घटकों perhaps को have much स्पष्ट more रूप से जोड़ने से flexibility बचेगा। in the way शायद that we नए could वैक्सीन respond फॉर्मुलेशन या to शायद नए different वैक्सीन प्लेटफॉर्म। सच में proportions of different types or subtypes. जिस तरह But से we're हम really not in प्रतिक्रिया that दे सकते position थे at the उसमें शायद moment. हमारे पास So और we भी ज्यादा needed, सुविधा होगी अलग अलग last week अनुपात में अलग certainly, अलग to प्रकार या सबटाइप में। disentangle the लेकिन two हम असल में questions. इस समय उस One स्थिति में नहीं question है। about the B. yamagata lack तो of बेशक हमें circulation, पिछले सप्ताह की and the जरूरत other थी question दो around प्रश्नों को अलग करने के लिए। what we could do with a बी fourth यामागाटा variant के of बारे में these, एक if you सवाल। like. Moving forward, it is दो going to सर्कुलेशन be की कमी और critical दूसरा सवाल जो that हम करते हैं we, as we क्वाड्रिवेलेंट फ्री remove स्लॉट के the साथ B. ऐसा कर yamagata सकता है। component, आपको आगे we बढ़ना remain पसंद है। vigilant for B. yamagata यह viruses. महत्वपूर्ण And होगा कि indeed, हम one of the things that we are really हम भी reaching out यामागाटा through the घटक को ISRIC हटा network, देते हैं। particularly to our national influenza हम भी centres, यामागाटा वायरस के लिए is सतर्क to रहते हैं और remind असल them में of the उन importance चीजों में of से एक जिन lineage तक हम गैस्ट्रिक नेटवर्क determination के जरिए and of असल में really पहुंच रहे making हैं, sure that we खास तौर understand से the हमारे underlying नेशनल इन्फ्लुएंजा epidemiology of केंद्रों के those लिए detections. उन्हें वंश के Okay, I महत्व की think याद that's दिलाने के some लिए of है। the points. दृढ़ Shall I संकल्प pass और back to असल you में and यह maybe you सुनिश्चित can करना pick कि up a हम few more अंतर्निहित along the चीजों को line, समझें। Elizabeth there? So that would be good. इन खोजों के पीछे Sure. महामारी So let विज्ञान me also वेंजिंग add मुझे लगता a है bit कि इसने more कुछ बिंदुओं को संबोधित किया also है। क्या मुझे आपके surrounding पास the वापस जाना B चाहिए और हो सकता है component. कि आप पिक अप कर Nicholas सकें। said आपके we पास need लंबी to, लाइन की सूची है तो यह अच्छा रहेगा। differentiate जरूर the घटक question about निकोलस। what additional तो components चलिए we मैं could इसके बारे में integrate थोड़ा और भी vis-a-vis जोड़ता हूँ कि हमें अंतर circulation करना and होगा। beyond. We also need to differentiate two questions. One is whether सवाल यह है कि the किस virus अतिरिक्त must घटक be को जोड़ा extinct जा सकता है। vis-a-vis हाथ whether का the virus सर्कुलेशन। should be हमें considered दो extinct. प्रश्नों में भी अंतर करना होगा। The committee considers क्या that वायरस this विलुप्त हुआ component है is या no नहीं? longer warrant. क्या आप इस बारे में With जानना because the चाहते हैं virus is कि no वायरस longer वैक्सीन में circulating होना in the चाहिए या नहीं? population. समिति ने And then माना कि another यह question घटक asked अब how नहीं है। confident we वारंट are. क्या हुआ? वारंट So ऐसा इसलिए था the क्योंकि infection वायरस अब surveillance is आबादी में नहीं conducted फैल by रहा this है। global network. और फिर एक और And सवाल this पूछे कि network, हम कितने आश्वस्त हैं। formally designated तो the इन्फ्लुएंजा national से निगरानी influenza इस ग्लोबल centers. द्वारा There की are जाती है। more than 150. But beyond नेटवर्क और those, इस नेटवर्क almost को औपचारिक रूप से 170, नेशनल इन्फ्लुएंजा 180 नामित किया countries गया are था। केंद्र contributing ये to the 150 से influenza ज्यादा है, surveillance globally. लेकिन And उनसे this is परे year-round लगभग activity. 170 So through this 180 system, we देश can be very इन्फ्लुएंजा वायरस confidently में to say योगदान दे that रहे हैं। this virus निगरानी beyond is और यह not साल भर की circulating in the गतिविधि है। तो इस population. सिस्टम के जरिए But this is different to have a हम special पूरे study विश्वास के that साथ this यह कह virus सकते is हैं कि यह extinct वायरस from the world, जनसंख्या में from नहीं the घूम earth. रहा है। This is more towards the research studies. So this is one लेकिन इस point बारे I में want खास to अध्ययन करना कि यह वायरस अलग है, यह अलग बात है। दुनिया से, धरती से यह शोध अध्ययनों के लिए ज्यादा है। तो यह एक पॉइंट है जो मैं करना चाहता हूँ, बनाना चाहते हैं। दूसरा इस सवाल के बारे में कि क्या एक घटक को हटाने से नुकसान होगा या नहीं, इस बारे में चिंताओं के बारे में। यह इसलिए आत्मविश्वास या कुछ नकारात्मक प्रभाव। लेकिन मुझे लगता है कि यह ऑफसेट होना चाहिए क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो असल में हम इस बारे में बहुत करीब से देख रहे हैं कि वैक्सीन में क्या होना चाहिए। यह उस खास इस्तेमाल के लिए टीकों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। सीजन हकीकत यह है कि उस मौसम में वायरस नहीं फैल रहा था। तो मुझे लगता है कि यह सबसे आसान है। तरीका यह है कि वैक्सीन में वायरस होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हमें आपके साथ मिलकर संचार की जरूरत होगी, आत्मविश्वास या उलझन के बजाय। लेकिन असल में आपको वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ाना होगा। मैं अपने अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस घटक वाली टीकों का मौजूदा डेटा है सुरक्षित और प्रभावी। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह वायरस नहीं फैल रहा है। हम इस घटक को हटाने के लिए राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रुकता हूँ और हम पहले पूछ सकते हैं कि क्या रिचर्ड और एस्पन इसमें और इजाफा करना चाहेगी। I don't संबंधित think I'll सवाल, have anything to add apart from what क्योंकि इससे बहुत Philip कुछ and Nick have संबंधित just है। discussed, Wenjing. Okay, so with this we can move to the zoonotic questions. आपने और निक ने अभी जिस बारे में चर्चा की है उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम जूनोटिक प्रश्नों की ओर बढ़ सकते हैं।
असल में वे काफी जोड़े हुए भी हैं। मूल रूप से यह $1 मिलियन का सवाल है। फिर से रिचर्ड, इसे 5 होने चाहिए। 7 Well, बज I रहे hope हैं। the answer to that, Wenjing, is शुरुआत के none of तौर them. पर कौन सबसे अलग दिखेगा या जैसा है महामारी का स्ट्रेन It is अगली very, बार, very आपको क्या difficult लगता to है? put खैर, sort of a real numbers on the लेकिन absolute हम risk of these देखेंगे। viruses. So मुझे right उम्मीद है now we कि वेंडिंग का consider जवाब उनमें से कोई नहीं है। the human risk of तो these यह बहुत ही viruses, at least from a इन pandemic वायरस के पूर्ण perspective, is जोखिम really के बारे में low, but असल में it नंबर is डालना certainly बहुत not मुश्किल है। zero. इसलिए अभी हम इन विषाणुओं के And जोखिम, that's one मानवीय of the जोखिम पर विचार reasons करते हैं, we do कम से these कम महामारी के exercises नजरिए से for नीचा दिखाने के लिए। preparedness just in लेकिन case. यकीनन यह शून्य नहीं है। और Would फिर also like to sort of make a यही एक pitch कारण now है for कि हम ये another अभ्यास just करते हैं। this जहां तक तैयारी की program बात है, that looks बस at मामले में this relative risk of these different viruses in animals and is मैं भी TIFRA. अब किसी So और के that's a लिए tool पिच for बनाना influenza चाहूंगा। pandemic risk assessment, which is something जोखिम we haven't प्रोग्राम talked जो about इन here, अलग अलग वायरस के but it's सापेक्ष another जोखिम को tool देखता है, that जानवर। TIFRAS uses और for their इसलिए यह experts इन्फ्लुएंजा to महामारी के जोखिम का score आकलन करने different का एक viruses साधन है। circulating in animal कुछ ऐसा है populations जिसके for बारे the में हमने यहाँ potential बात नहीं की है, likelihood of emerging लेकिन in यह एक humans और and टूल what है they जिसका do, इस्तेमाल what their विशेषज्ञों के लिए impact किया will जाता be. है। So another way of जानवरों putting की these viruses आबादी में together उनकी and क्षमता के हिसाब ranking से which फैलने वाले viruses, अलग अलग relative वायरस ranking स्कोर of करें। viruses मनुष्यों we में should put उभरने की resources संभावना to और अगर वे test करते हैं, against. उनका क्या And प्रभाव when we होगा। do those exercises, तो इन often we वायरसों use को the एक साथ रखने H5s और यह and बताने का दूसरा H7s तरीका that है कि कौन से appear to वायरस be on संबंधित top हैं। of that list. So वायरस in की the रैंकिंग, context हमें इसके खिलाफ of तैयारी के where लिए we're संसाधन looking, लगाने we चाहिए। do look at the और जब हम ये व्यायाम करते H5 हैं, and H7s very, उस very सूची में closely, सबसे but ऊपर है। you know, that अक्सर there are 5 और also a 7 number of ऐसे other होते हैं viruses जो out there that आसपास can दिखाई देते tie हैं, that तो list हम कहाँ together. देख रहे And हैं इस संदर्भ unfortunately, में। can't tell you हम right H5 को now देखते हैं, what that शायद H7 absolute को भी risk is. Is it 2%, बहुत करीब से, 5%, लेकिन यह कि 50%? ऐसे कई Well, I अन्य can't वायरस भी हैं relate to जिनमें the जूनोटिक pandemic जोखिम virus होता है। that दुर्भाग्य से used हम to आपको अभी नहीं बता unfortunately सकते tell you that. वह So पूरा जोखिम क्या है। that's why we've got to do what we क्या do वह and do 2%, these 5%? preparedness activities just in case. Thank you, Richard. Nicola, do you want to add anything about this question? 50% संभावना है कि उनके महामारी वायरस हो सकते हैं। हम अभी नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से आपको यह बता सकते हैं, तो हमें वह क्यों करना पड़ता है जो हम करते हैं, और इन तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों को सिर्फ तभी करना पड़ता है। धन्यवाद। रिचर्ड, निकोला, क्या आप इस प्रश्न के बारे में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मेरी क्रिस्टल बॉल रिचर्ड की तरह ही धूमिल है। जानवरों की आबादी से क्या निकल सकता है इस संदर्भ में? मैं कहूंगा कि विविधता खत्म हो गई है, जानवरों की आबादी में है, और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में हम अपनी निगरानी में सुधार कर सकते हैं, जानवरों की आबादी में स्वास्थ्य के एक दृष्टिकोण से। इसलिए हम फैलने वाले वायरस के बारे में और ज्यादा समझते हैं, जंगली और खास तौर से पालतू जानवरों में, ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें। उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए वे एक ही स्वास्थ्य तरीके से हैं, जैसा कि रिचर्ड ने बताया, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस पर ओपेरा और जोखिम को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि जूनोटिक पर मेरे यही विचार होंगे। साइड असल में आपके राष्ट्रीय पशु सहयोगियों से संपर्क करने और असल में काम करने के लिए। Thanks to you both. So, जानवरों की इन आबादी में कौन कौन से वायरस फैल रहे हैं, यह समझने के लिए सामूहिक रूप से वन हेल्थ स्पेस में देखने के लिए धन्यवाद। आपके बॉस को धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी हमारे विशेषज्ञों से सुना है कि हम असल में नहीं जानते कि स्ट्रेन क्या होता है। इन्फ्लुएंजा महामारी का कारण बनने वाली महामारी का अगला स्ट्रेन कौन सा है, लेकिन सिग्नल अब कहां से भेजे जा रहे हैं। किसी भी इन्फ्लुएंजा से स्तनधारियों में फैलने का प्रकोप सचमुच बहुत चिंताजनक है। तो हमें पहले निगरानी मजबूत करनी होगी, ताकि अगर कोई वायरस सामने आए, अगर कोई महामारी वायरस उभर आया है, हम बहुत जल्दी पिकअप कर पाएंगे। और दूसरा है शोध और विकास। उम्मीद है कि मुझे लगता है कि यहाँ भी एक सवाल था। समय चाहिए था जब वैक्सीन का विकास बहुत कम होगा, तो इसका मतलब है कि यह समय चाहिए था कि वे चीजें जो अगली महामारी के रूप में उभर रही हैं, तनाव और उपलब्धता। पहली खुराक में से महामारी के टीके लगाना बहुत आसान होगा, समय बहुत कम होगा। तो यह इस पर शोध है, शोध और विकास जिन्हें हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास अभी भी समय है, असल में शायद कुछ समय के लिए। 2 सवाल फिर से, चलो बीम पर वापस आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि लोगों की बीम कंपोनेंट में बहुत दिलचस्पी होती है। निकोला, हो सकता है कि आप बता सके कि सर्विलांस में बीम लिनेज का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि विंचिंग वंश का निर्धारण, तो हमारे पास टाइपिंग परख है, और फिर हम बेशक कर सकते हैं।
इसलिए ऐसे रिएजेंट उपलब्ध हैं जो इस क्षेत्र में सक्रिय प्रयोगशालाओं को न केवल ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं, वह इन्फ्लुएंजा टाइप करे जो फैल रहा है, लेकिन वंश निर्धारित करने के लिए भी। अगर यह सच है, और मुझे लगता है कि असल में एस्पन टिप्पणी करना चाहेगी क्योंकि वह जवाब दे रही है चुनौतियों के आधार पर निर्धारित भी वंश से बातचीत में। एस्पन, क्या आपको जवाब देना है? आप जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ रिएजेंट्स के बारे में पहले ही जवाब दे दिया है और तकनीकी पहलू से चीजों का वह पहलू परख के दृष्टिकोण से, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले से ही चैट में एक्टिव हैं, इसे हमारे पास भेज रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। मैं कुछ मामलों में संक्षेप में बता दूंगा कि मैं उसमें बातचीत क्या कर रहा था। उन देशों में कुछ प्रयोगशालाएं जिनके पास आगे की वंशावली करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं, निर्धारण और क्या भेजने की जरूरत है। वंश की पुष्टि के लिए नमूने। हो सकता है कि आगे चरित्र चित्रण करने के लिए पर्याप्त नमूना न बचा हो, इसलिए हम नमूने लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबटाइप और वंश निर्धारित किया गया था, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या में ऐसे नमूनों के लिए यह संभव नहीं होता है जिनका पता लगाया जाता है, ऐसे वायरस जिनका पता चल गया है या हाँ, और मुझे लगता है कि मैं बस उस विचार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करूंगा कि यह असल में ऐसा है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सहयोगी केंद्रों के बीच साझेदारी बनाना वाकई उपयोगी है क्योंकि हम खड़े हैं, हम साथ खड़े रह सकते हैं। अगर बचे हुए नमूने का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, उन्हें इस कोशिश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सहायता करने में बहुत खुशी हो रही है। आगे के चरित्र चित्रण में सहायता करें और जाहिर है कि कुछ मामलों में हमें पर्याप्त जानकारी मिल सकती है। सीक्वेंसिंग के लिए भी हमारे पास चीजों की सामग्री बची है। तो असल में यह है, यह बहुत जरूरी है कि हम सभी का इस्तेमाल करें। इस खास लैब में नेटवर्क की विशेषज्ञता, जैसे कि यामागाटा की इस समय की स्थिति और मेरे अन्य सहयोगी केंद्र निर्देशकों से बात करते हुए, लेकिन हम किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। चबाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद निकोला। मैं इस मुद्दे के बारे में जोखिम कम करने के उपायों के बारे में भी बताना चाहूंगा, तो कृपया यह मत सोचो कि हम इस तरह से उन्हें हटा देंगे। हम निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जोखिम कम करने के संबंध में। विनियामक एजेंसियां, अगर यह समस्या वापस आती है, और बेशक और प्रकोप, हम क्या जवाब देने वाले हैं, लेकिन बेशक लाइसेंस उपलब्ध टीकों या लाइसेंस वाले टीकों की समीक्षा करनी होगी और उन पर गौर करना होगा। और तकनीकें भी उपलब्ध है क्योंकि यह मोनोवेलेंट हो सकती है, क्योंकि 2009 में तब मोनोवेलेंट उनमें से महामारी के टीके बनाए जा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से विनियामक प्रक्रिया पर गौर किया जाना चाहिए। और यह क्या निर्माताओं के साथ संयुक्त तैयारी है, विनियामक एजेंसियों के साथ और इन सभी के साथ, चाहे हम किसी घटक पर हो या किसी घटक संबंध को हटा रहे हों। बहुत करीब से जिन टीकों पर नजर रखी जा रही है, उनके प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करें। दुनिया के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा बहुत गंभीरता से, मुझे लगता है कि मुझे संकेत मिले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है, तो अभी यह कहने में ही 5 मिनट बाकी है। जिन सवालों के जवाब ऑनलाइन नहीं दिए गए हैं, वे आपको लिखित जवाब देंगे अगर हम गुमनाम नहीं हैं, क्योंकि कुछ गुमनाम सहभागी है। मुझे नहीं पता कि हम उन्हें मैनेज कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके साथ इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। मैं 2 वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, निकोला और रिचर्ड भी। मेरे सहकर्मी ने इस वेबिनार सेशन में उनसे पूछा और मैं वापस सुप्रिया के पास जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंचिंग और डॉक्टर निकोला लुइस और डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद रिचर्ड वेबी। अब हम एक और वैसी के अंत में पहुंच गए हैं। हर कोई वेबिनार में बहुत दिलचस्प है और हम इस सवाल के जरिए देख सकते हैं और बातचीत की टिप्पणियों से कि लोग बहुत व्यस्त भी रहे हैं। खास तौर से प्रतिभागियों को धन्यवाद। बातचीत से मुझे यह पता चलता है कि हमारे पास लोग हैं पूरी दुनिया में। फिजी के लिए सहकर्मी, रुके रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय की आधी रात हो रही है, इसलिए हम सच में आपकी रुचि के लिए आभारी हैं। इसी तरह दक्षिण और अन्य जगहों से जहां यह असल में है सुबह सुबह, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वेबिनार के पीछे मैं उस टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो चली गई। एस्पन हैमंड, आलोचनात्मक कौन रहा है, आपको पता है, कॉन्सेप्ट के आगे से, और
क्रिस्टोफर चैडविक और EPI टीम। यहाँ डॉ. प्रिया रामचंद्रन, डॉ. इग्नेस एस्टोरिनो, दोनों का ब्रेक चल रहा है। उन्होंने मदद की है, खासकर प्रिया। इस खास वेबिनार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जियानफेंग लियू, जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी तकनीकी समस्याओं में हमारी सहायता की है। गैब्रिएला सैंटोसो और भी। एंटोन पेरेज, वे पिछला सारा काम मैनेज कर रहे हैं, जिसमें इसके इर्द गिर्द तकनीकी कार्य भी शामिल है। ट्रांस पैसिफिक के दुभाषियों को मेरा धन्यवाद। हर बार हमारे साथ जुड़ने और अच्छे अनुवाद करने के लिए धन्यवाद। सत्रों की व्याख्या करना। हम इंटरप्रेटर AI को उनके AI सक्षम अनुवाद के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और बिल्कुल वेंचांग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है और इसकी अवधारणा बना रहा है? और डॉक्टर रिचर्ड वेबर और डॉ. समय बचाने और शानदार काम के लिए निकोला लुइस। फीडबैक, सभी वेबिनार रिकॉर्ड हो चुके हैं। यह वेबसाइट पर साथ में भी होगा, अलग अलग भाषाओं में भी लिंक, ताकि आप इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आगे शेयर कर सकें। इसे कौन नहीं बना सका? प्रस्तुतकर्ताओं की प्रस्तुतियां भी इस प्रकार होंगी। अपडेट किया गया है, और अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो कृपया हमें पूरा करें। इसके लिए उपस्थित रहें और कृपया सर्वे में हमें बताएं कि आपके द्वारा सीखी गई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ वेबिनार को और भी उपयोगी बनाना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और उन लोगों के लिए जो प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे थे। मुझे खेद है कि हमारी अपनी एक अड़चन के कारण टीम बाधाएं और मानव संसाधन की बाधाएं दोनों के रूप में। आपको पता है, प्रिया और अग्नेसी, जिन्होंने इन वेबिनार में काम किया था, दोनों छुट्टी पर हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। हम जितनी जल्दी हो सके आपको प्रमाण पत्र दे देंगे, और अगर आप फ्यूचर के वेबिनार के बारे में और जानना चाहेंगे, कृपया बातचीत के लिंक से जुड़े। हम आपको अपनी मेलिंग लिस्ट में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि इस नए सप्ताह के लिए आप